हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 लिमिट पार्ट 2। चैप्टर नंबर 4 लिमिट। वी हैव स्टडीड फंक्शन इन 11th स्टैंडर्ड। हम फंक्शन के बारे में 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। वी स्टडीड इन द चैप्टर दैट व्हेन वी substitute a particular value of a variable in the function, we got the corresponding value of the function. For example, we substitute x is equal to 2. So look at here student, x is equal to 2. In the function fx is equal to 2x plus 3. ये हमारा फंक्शन है। x इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू 2 है जिसको हमें x के अंदर रखना है। सो लुक एट ये स्टूडेंट, 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा बिकॉज f2 हम x यहाँ पे 2 रख रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो f2 का आंसर आ रहा है यहाँ पे 7। f2 इज इक्वल टू 7 आंसर। एंड इफ वी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन द फंक्शन, टेकिंग अनदर वन एग्जाम्पल, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें x इज इक्वल टू 1 है और उसका फंक्शन है। सो टेकिंग x इज इक्वल टू 1 एंड फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3x प्लस 2। यहाँ पे 1 रखना है तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं f1, 3 माइनस 1, 3 इंटू 1 प्लस 2। सो लुक एट ये स्टूडेंट, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2। सो आंसर आएगा 2/5। अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या करते थे फंक्शन चैप्टर में कि x का जो वैल्यू होता था वो फंक्शन में हम लोग रख देते थे और उससे हमें एक वैल्यू मिलता था जो उसका आंसर होता था। अंडरस्टैंड? So we substitute x is equal to 1 in the function fx is equal to 3 minus x divided by 3x plus 2. We get f1 is equal to answer 2/5. But this is not possible for all function. ये हर एक फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। And all values of x. Let us consider a function fx is equal to x square minus 9 divided by x minus 3 and if we substitute x is equal to 3. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। Why it is not possible for all the function. So taking one example. So क्वेश्चन है हमारे पास fx is equal to x square minus 9 x minus 3, this is our question। और हमें if we substitute x is equal to 3, यहाँ पे x यहाँ पे क्या रखना है, 3 रखना है। So look at here student, f3, 3 square minus 9 divided by 3 minus 3, 3 3 ज़ा 9, 9 minus 9, 3 minus 3, 9 में से 9 जाएगा तो 0 आएगा, 0/0, which is an indeterminate value। ये कौन सी वैल्यू हो गई, indeterminate value। To find approximate value of f3 for these function, we need to know the concept of limit of a function। So limit can be used to approximate the value of function when the value of function is indeterminate। We consider the following illustration to clarify the above concept। तो हम एक एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। Assume that we are watching a football game through internet. Unfortunately, the connection is choppy and we missed that happened at 14.00। ये टाइम पे हमारा कनेक्शन टूट गया, राइट? तो अब हमें उस मिनट पे क्या हुआ होगा वो अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? So what would be the position of the ball at 14.00? We have seen the position of all bat of the ball at 13:58, 13:59, 14.00, right? We will see the neighboring instant of 14.00। इसका नेबरिंग हम लोग देखेंगे, नजदीक में क्या हैपनिंग हुआ होगा। Understand? The ball was somewhere between in the position 13:59
एंड 14.01 14.01 ये नियरेस्ट टाइम में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल पोजीशन कहाँ थी. वी माइट इवन से 14.00 द बॉल वॉज समवेयर बिटवीन इन द पोजिशन एट द 1359 एंड 14.00 इन दोनों के बीच में कहीं पे बॉल होगा. इट मीन्स दैट अवर एस्टिमेशन इम्प्रूव्स एज वी टेक क्लोजर एंड क्लोजर इंस्टेंट्स टू 14.00. The approximate position of the ball thus obtained will be the limiting the value of the position of the ball. Thus we can say that limit is a method for finding confident approximate value. So limit क्या find करता है? Confident approximate value find करता है. Understand? Limit is the method for finding confident approximate value. Understand? Now moving to the next point. Now look at here, student. There are various concepts we have to learn about this. So first is real line and its interval. First है real line. What is the meaning of real line? A line where its points are the real numbers is called the real line. यानी a line, एक line है जिसके हर एक points कौन से है? Real numbers है, is called a real line. Now next, interval. A set of real numbers between any two real numbers is an interval. A set of real numbers between any two real numbers यानी दो real numbers के बीच में वाला जो भी set होगा उसको क्या कहा जाएगा? interval. Understand? So interval के 4 types है. First है closed interval, open interval, closed open interval and open closed interval. फर्स्ट पॉइंट है क्लोज्ड इंटरवल. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर यानी ए और बी कोई रियल नंबर्स है जो रियल नंबर से कनेक्ट करते हैं एंड ए इज लेस देन बी. इसका मीनिंग है बी से ए कैसा है? स्मॉलेस्ट है. देन अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल. A and B including A and B is called closed interval. यानी जो दो रियल नंबर्स होंगे दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल. इट इज डिनोटेड बाय इन ब्रैकेट A, B ब्रैकेट ओवर. thus ब्रैकेट A, B x/a less than or equal to x less than or equal to b x belongs to r. यानी a और b दोनों ही जो रियल नंबर्स है उसको क्लोज्ड इंटरवल में क्या करना है? कंसीडर करना है. अंडरस्टैंड? यहाँ पे कहा गया है ना a and b इंक्लूडिंग a and b इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल. नेक्स्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल. नेक्स्ट है हमारे पास ओपन इंटरवल. इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यानी ए और बी दोनों कोई रियल नंबर्स है एंड ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग, ध्यान देना, ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग एंड ए एंड बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल. यानी जो ए और बी दोनों ही नंबर उसमें इंक्लूडिंग नहीं होंगे, उसके बीच वाले जो नंबर है उसको ही इंक्लूड किया जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? ओपन इंटरवल. इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट A, B ब्रैकेट ओवर. thus in bracket A, B is equal to curly bracket x where a less than x less than b x belongs to r. कर्ली ब्रैकेट ओवर. अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है. हमें पता है कि जब भी ऐसी कोई साइन होती है और लेस देन और इक्वल टू होता है तब उस डिजिट को हम कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे ऐसी साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन ही है दोनों तरफ, तो हम ए और बी को कंसीडर नहीं करेंगे, बट उसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स होंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है? ओपन इंटरवल. अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्लोज्ड ओपन इंटरवल. नेक्स्ट है क्लोज्ड ओपन इंटरवल. इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, then the set of all real numbers between a and b including a but not including b. क्या करना है? ए को इंक्लूड करना है बट बी को इंक्लूड नहीं करना है, इज कॉल्ड अ क्लोज्ड ओपन इंटरवल. इट इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट A, B
ब्रैकेट ओवर। आप लोग ब्रैकेट में चेंजेस देख सकते हो, एक कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल का है और दूसरा है ओपन इंटरवल का। और यहाँ पे क्या कहा गया है, रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूडिंग बी, यानी यहाँ पे ए जो नंबर होगा, ए जो रियल नंबर होगा उसको इंक्लूड करना है, बट बी जो रियल नंबर है उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। दस इन ब्रैकेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x where a less than or equal to x less than b, x belongs to R, करली ब्रैकेट ओवर। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ए को कंसीडर करना है बिकॉज लेस देन और इक्वल टू है। ये हमें मालूम है जब भी ये साइन होती है लेस देन और इक्वल टू की, तब हम वो जो डिजिट होती है उसे कंसीडर करते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ए को कंसीडर करना है और बी को कंसीडर नहीं करना। सो दैट्स व्हाई ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। तो इसको क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। फोर्थ वन है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन बी, then the set of all real numbers between a and b not including a but including b। यहाँ पे हमें किसे इंक्लूड नहीं करना, a को इंक्लूड नहीं करना बट b को इंक्लूड करना है, is called a open closed interval। it is denoted by ब्रैकेट में a कॉमा b। thus a कॉमा b is equal to curly bracket x where a less than x less than or equal to b, x belongs to r। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a लेस देन है, यानी a को कंसिडर नहीं करना है, बट b की जो वैल्यू होगी उसको क्या करना है, कंसिडर करना है। तो इसे क्या कहा जाता है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सो स्टूडेंट हम चारों के चार इंटरवल पढ़ चुके हैं। सबसे पहला था क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें क्या कहा गया है, a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b इज कॉल्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल। जहां ए और बी दोनों ही रियल नंबर को इंक्लूड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। जहां ए एंड बी दोनों ही रियल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं और उनके बीच वाले नंबर को भी इंक्लूड किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। देन नेक्स्ट था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग, बट ए एंड बी के जितने भी बीच वाले जो भी नंबर्स है उसको इंक्लूड किया जाता है। वहां पे ए और बी इंक्लूड नहीं किए जाते, उसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। देन क्लोज्ड ओपन इंटरवल, जिसमें ये था कि ए को इंक्लूड करना है बट बी को इंक्लूड नहीं करना है, उसको क्या कहा जाता है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। एंड लास्ट वन है ओपन क्लोज्ड इंटरवल, जहां पे हमें क्या करना है, ए को इंक्लूड नहीं करना और बी को इंक्लूड करना है। अंडरस्टैंड। तो ये 4 टाइप्स इंटरवल ये हमारे ओवर हो रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस। आप लोग मॉड्यूलस के बारे में तो जानते होंगे। मॉड्यूलस में जो भी माइनस के साइन वाले डिजिट्स होते हैं वो मॉड्यूलस में से अगर बाहर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉड्यूलस। इफ अ रियल नंबर इज x, then modulus is used to express x as non-negative. The modulus of x is denoted by in modulus x. The modulus of real number is always positive. मैंने आगे ही बताया आप लोगों को कि जो भी मॉड्यूलस के बाहर आता है वो पॉजिटिव ही नंबर होता है। अंडरस्टैंड। इन मॉड्यूलस इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। 0 से अगर x बड़ा है तो भी वो पॉजिटिव साइन नहीं होगा, और इज इक्वल टू -x, अगर हम यहाँ पे -x रखते हैं फिर भी वो बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इफ x इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन 0। अंडरस्टैंड। यानी वो पॉजिटिव ही हो जाते हैं, नॉन नेगेटिव ही नंबर होते हैं। यानी द देन मॉड्यूलस इज यूज टू एक्सप्रेस x एज नॉन नेगेटिव। यानी मॉड्यूलस किसके लिए यूज होता है, तो x को नॉन नेगेटिव में एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, ये हमें मालूम है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा। So look at here student, in modulus x minus a less than delta is equal to x minus a less than delta if x is
ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और एक्स लेस देन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा ब्रैकेट ओवर इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। नेक्स्ट है ए माइनस एक्स लेस देन डेल्टा इफ एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा इफ एक्स लेस देन ए। So in modulus x minus a less than delta x belongs to a minus delta comma a plus delta। स्टूडेंट्स ये हमें एग्जाम्पल के लिए यूज होगा, जब हम क्वेश्चन काउंट करेंगे तब हमें ये फॉर्मूला यूज होगा। अभी के लिए सिर्फ आपको यही समझना जरूरी है और ये लिखना जरूरी है। जब हम सम्स काउंट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब हम इसका कैसे यूज होता है वो अच्छे से समझेंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या सीखा, तो आज हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट का मीनिंग, देन रियल लाइन एंड इट्स इंटरवल, 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, देन नेक्स्ट मीनिंग ऑफ मॉड्यूलस। अंडरस्टैंड? तो ये सब हमने आज सीखा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कल मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू देन, बाय।